پوری باشندگان ہندوستان جب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ رات کے اندھیری میں قرآن کی آیت تلاوت کر کر کے اور سمجھ لیں کہ عذاب آنے والی ہوتی ہے، اس عذاب کو ٹالنے کے لیے چوکیدار پیدا ہو گئے ہیں۔ ارے ایک گھر میں ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن ہو جو ان گھر والوں کے لیے آخرت میں سفارشی بن سکے اور دینی فضا گھر میں ہموار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو جو اپنے دل کے سینے میں رکھتا ہے اسے میں بہت ہی اپنے قریب رکھتا ہوں اور اسے جنت دیتے ہیں۔ مدرسہ مظہر العلوم میں جو 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ہم تو لگتا ہے زمین میں سو کے چٹائی میں رہ کے صبح 4 بجے سے اٹھ کے دن بھر پڑھنا اور اس پڑھائی کو جو کمپلیٹ کیے ہیں۔ میں جیسمین ناز پڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ مدرسہ مظہر العلوم اربا رانچی میں تکمیل حفظ کا مقام حاصل کیے 7 بچوں کو کیا گیا سمانت۔ راجدھانی رانچی کے اربا گاؤں میں استھت مدرسہ مظہر العلوم اربا رانچی میں برہسپتیوار کو تکمیل حفظ کا مقام حاصل 7 بچوں کو سمانت کیا گیا۔ اربا مدرسہ مظہر العلوم میں 7 تکمیل حفظ بچوں نے قرآن پاک کا پاٹھ مکمل کر لیا ہے، جس میں حافظ محمد حذیفہ، حافظ محمد سلمان، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد شعیب، حافظ محمد عابد، حافظ محمد سرفراز، حافظ محمد جنید شامل ہے۔ ان سبھی 7 بچوں کے سمان میں مدرسہ مظہر العلوم اربا میں برہسپتیوار کو سمان سماروہ آیوجت کیا گیا۔ وہیں قرآن کے سبھی 30 پاروں ادھیائے کا اچارن سہت پورا کرانے میں ان کے استاد مفتی عمران ندوی، مفتی وسیع الرحمان ندوی، مولانا سمیع الحق مظاہری، حافظ سلامت، حافظ تبریز، مفتی فرقان، قاری جان محمد، قاری ثاقب، قاری نفیس، ماسٹر عبدالقدوس سرانی یوگدان رہا۔ تکمیل حفظ بچوں نے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا، جس کے بعد تکمیل حفظ کیے بچوں کو انعام سے نوازا گیا۔ تعلیم علم 7 بچوں نے جو کام کر کے دکھایا، اس سے ان کے ابھیبھاوکوں کے ساتھ ان کو پڑھانے والے استاد بھی کافی گرو محسوس کر رہے ہیں۔ وہیں مدرسہ مظہر العلوم اربا رانچی میں راجیہ بھر کے یتیم و غریب بچے وبھن جگہوں سے آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے ہزاروں حافظ اور عالم پیدا کیے، جن کے علم کی روشنی سے آج صرف اربا ہی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس دوران مفتی ابو عبیدہ، قاری معین انصاری، اطہر امام، مولانا صابر، مولانا طلحہ ندوی، مولانا اسماعیل قاسمی، مفتی سہیل، امتیاز عہدیدار صدر مرکزی کمیٹی اربا، ارشد انصاری سیکرٹری، نعیم عرف ہمایوں انصاری نوجوان کمیٹی صدر، مصطفیٰ ببلو، سرفراز، وسیم کے علاوہ مدرسہ سے سبھی بچے اور اربا کے آس پاس کے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ آج الحمدللہ مدرسہ مظہر العلوم اربا رانچی جھارکھنڈ میں 7 بچوں کا تکمیل حفظ کا پروگرام تھا اور بہت سارے علماء کرام اور ان کے گارجین حضرات آئے ہوئے تھے۔ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا اور ہمارے جانکاری کے مطابق ان کے گارجین جتنے خوش ہو کر گئے، یہ ان کی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کو اتار دیا۔ لگاتار یہاں سے بچے پڑھ رہے ہیں، باہر بھی جانے کی نسبت ہوتی ہے، کیا یہاں پر وہ ویوستھائیں نہیں ہو پا رہی ہے کہ باہر لوگ جا رہے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں ابھی فی الحال ہمارے پاس 150 بیڈ ہی کے لیے جگہ ہے، لیکن الحمدللہ ابھی کام لگ چکا ہے جس میں اور 50 بچے اس میں رہ سکتے ہیں۔ اور امسال میری جانکاری مطابق، اس لیے کہ میں خود ایڈمیشن لیتا ہوں، میں جانتا ہوں 60 بچوں کو واپس کیا گیا اور داخلہ نہیں لیا گیا، اسی لیے کام لگایا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سال وہ مکمل ہو کے اس میں بچے بھی رہیں گے۔ 7 بچوں کو جو سند دیا گیا ہے، کہاں کہاں کے ہیں اور کیا نام ہے؟ یہ لوہردگا کے بھی ہیں، رانچی کے بھی ہیں اور دیہات کے علاقے کے بھی ہیں۔ یہ الحمدللہ پڑھائی کا تعلیم کا جو سلسلہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں میتھس ہے، انگلش ہے، ہندی ہے اور بھی جو زبانیں عربک ہیں، ان تمام زبانوں میں اچھی تعلیم اچھے استاد کے ساتھ، ویل ٹرینڈ ٹیچرز کے ساتھ دی جاتی ہے، تاکہ بچہ جہاں بھی جائے، چاہے اسکولی نظام میں چلا جائے تو وہاں فٹ ہو جائے، مدرسے کے نظام میں چلا جائے تو وہاں فٹ ہو جائے۔ مفتی وسیع الرحمان ندوی، ناظم تعلیمات مدرسہ مظہر العلوم اربا رانچی جھارکھنڈ۔ آج اس مدرسے میں 7 بچے جو ہیں حفظ قرآن کا سند لیے 3 سال 4 سال چٹائی میں سو کر ٹھنڈا برسات گرمی سارا چیز کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے بہت اونچا چیز
का सनद हासिल किया है, जो सनद दुनिया में तो फायदा होगा ही होगा, सबसे बड़ी फजीलत उसका आखिरत के लिए है। जो अल्लाह ताला साफ कहे हैं कि कुरान की अज़मत को जो अपने दिल के सीने में रखता है, उसे मैं बहुत ही अपने करीब रखता हूँ और उसे जन्नत देते हैं। आज ये मदरसा मैं देखे हुआ हूँ 1979 में बना। यहाँ के बुजुर्ग लोग, हमारे मरहूम वकील साहब, हमारे अभी हयात में हैं प्रशाद साहब और दिगर लोग, हमारे दादा अब्बा वगैरह, ये सब जो हैं मिलकर बहुत जद्दोजहद के बाद ये मदरसा कायम किया गया और सभी लोगों का इस मदरसा में ताउन है। उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये मदरसा अल्लाह का करम है कि 200-250 बच्चे हैं। मैं इसका इंचार्ज भी हूँ और सदर भी हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी निज़ाम रखा जाए। इसके लिए मैं नाजिम तालीम और नाजिम से बात किया हूँ कि इसको हम लोग कैसे करें, और इसके लिए अगर हमको एतराफ़ में घूम घूम कर भीख मांगने का भी ज़रूरत पड़े तो भीख मांग कर इस इदारा को एकदम बुलंदी पर ले जाने का प्रयास मैं करूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे शमशेर आलम साहब आए हुए थे, जो अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं, और अल्पसंख्यक आयोग में मैं खुद लिखकर विधायक जी को भी दिया हूँ, कागज भी जमा कर दिया हूँ। इंशाअल्लाह इन सब में भी मैं बहुत जद्दोजहद काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मदरसा में कुछ बिल्डिंग बन जाए तो और लड़कों का एडमिशन हो और रहने के लिए सहूलियत मिले। मैं यही बात कहकर यहाँ के तमाम जो मौलाना हैं, जो पढ़ा रहे हैं, मुदर्रिस लोग, और तमाम जो मदरसा से जुड़े हुए लोग हैं, स्टाफ लोग, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोगों को इखलास और मोहब्बत के साथ, बिना नाम और नमूद सोचे हुए कि हमको नाम नहीं कमाना है, हमको अल्लाह के यहाँ नाम कमाना है, ये सोचकर अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी है कि मदरसा दीन दुगनी और रात चौगुनी हो जाएगी। मोहम्मद इम्तियाज होदार, सदर मरकजी अंजुमन कमेटी इरबा। सबसे पहले तो हम इस पूरा इरबा वासी, हम लोग और हमारे जिम्मेदार और हमारे जो मदरसा के पुराने जिम्मेदार हैं, सबको मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह अपने तरफ से मैं उस नसीबी का ये समझता हूँ जो आज हमारे मदरसा मजरुल उलूम में जो 7 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। हमको लगता है ज़मीन में सो के, चटाई में रह के, सुबह 4 बजे से उठ के दिन भर पढ़ना और इस पढ़ाई को जो कंप्लीट किए हैं कलम पाक को, ऐसा लगता है कि आज के डेट में, आज के दुनिया में जो कलम पाक को हाफिज़ कुरान हो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं अंसारी, मैं नौजवान कमेटी इरबा का सदर। मदरसा मजहरुल या दूसरे जितने भी मदारिस हैं, वहाँ 3 शोबे में तकरीबन तालीम होती है। उनमें से एक है दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई। दर्जे हिफ्ज़ का मतलब होता है कुरान करीम को हिफ्ज़ करना। आज हर साल ही जितने भी तलबा उस रवां साल में हिफ्ज़ करते हैं, उनका तकमील का प्रोग्राम होता रहता है। उसी में से एक प्रोग्राम आज मदरसा मजरूर था, जिसमें 7 बच्चे जो इस साल हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, उनका तकमील हिफ्ज़ कुरान का आज प्रोग्राम था, जिसमें बाहर से और गांव के भी उलमा इकराम और जिम्मेदारान सब तशरीफ़ लाए थे। उन 7 बच्चों का आज तकमील हिफ्ज़। कहीं न कहीं मदरसे से लोग निस्बत और बनाएं, इसके लिए गार्जियन को, उसके लिए गार्जियन को यही कहा जाएगा और हमेशा से कहा जा रहा है, हमारी दुनिया और दीन दोनों चीज़ें कैसे साथ साथ चले। तो जिस तरीके से हमें तालीमी इदारे, जो असली तालीम है, दुनियावी तालीमी इदारे, उनके तरफ देखना है, ताकि हमारा
मुस्तकबिल ठीक ठाक रहे। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको अपनी मजहबी तालीम में ज़ोर शोर से लग करके और हर एक घर में एक बच्चा कम से कम हाफिज़ कुरान हो, जो उन घर वालों के लिए आखिरत में सिफारिशी बन सके और दीनी फ़िज़ा घर में हमवार हो सके। नाम मोहम्मद समीउल हक मज़ाहिरी, मदरसा मज़हरुल उलूम इरबा का मैं मुअल्लिम हूँ, यहाँ तालीम देता हूँ, आबाई तौर पर इरबा का रखने वाला हूँ। आज का जो प्रोग्राम था मदरसा मज़हरुल उलूम इरबा में 7 बच्चों का दस्तार फजीलत कुरान उन्होंने मुकम्मल किया। इस तरह से आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें खुसूसी इलाके के तमाम ज़िम्मेदारान हजरात भी तशरीफ़ फरमा थे, उलमाए कराम भी मौजूद थे और साथ में बहुत सारी ऐसी तज़किरा वलवला एंगेज बातें भी आई जो लोगों को पैगाम देने के लिए कि ये बच्चे जो आज 7 बच्चे जो हुफ़ाज़ कराम बने हैं, ये 7 बच्चे सिर्फ ये हुफ़ाज़े नहीं बल्कि समझ ले कि एक चौकीदार पैदा हुए हैं कि रात के अंधेरी में जब है कि हमारी कौम या पूरी बाशिंदगान हिंदुस्तान जब सो रहे होते हैं, तो ये रात के अंधेरी में कुरान की आयत तिलावत कर करके और समझ ले कि अजाब आने वाली होती है, उस अजाब को टालने के लिए चौकीदार पैदा हो गए हैं। क्या लगता है ये कौम की खिदमत के लिए आ जाएंगे? ये आएंगे, लेकिन आगे आने से पहले मैं एक बात और कहूँ आपकी मीडिया के जरिए से कि इस वक्त जितने भी हुफ़ाज़ कराम जहाँ कहीं से भी पैदा हो रहे हो, उसको इस वक्त असरी तालीम की भी सख्त ज़रूरत है कि हाफिज़ बनने के बाद फौरी तौर पर वो साथ साथ असरी तालीम का भी तवज्जो दे, ताकि वो एक हुफ़ाज़ कराम के अंदर ज़हन कुशादा होता है, कवी हो जाता है, आप बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया प्रोफेसर आप बनने के अंदर आपके अंदर सलाहियत है। यहाँ आपने पढ़ाई किया है, क्या रहता है? देखा जाता है कि मदरसा के बच्चे चटाई पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं, उसके बाद के मकाम पर पहुँचते हैं। हाँ, ये सच है कि ये टूटी चटाई से बैठ के निकलते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसे है कि टूटी चटाई से बैठ के निकल कर और सल्तनत को संभालने की सलाहियत रखते हैं। तो है कि इस बीच में किसी भी काम पर उस पर मेहनत की ज़रूरत है और ये मेहनत की जगह है, जो यहाँ मेहनत करेगा वो कारगर साबित होता है। आप जो हुफ़ाज़ बने उनका आज सेहरा किन पर ये पूरे जो यहाँ के असातिज़ा को बार बार मुबारक के काबिल है। यहाँ के असातिज़ा मोहम्मद फर इमाम खतीब मस्जिद साहबा ने 7 बच्चे जो हमारे हिफ्ज हुए हैं, हम लोग को बहुत, गांव वाले को बहुत खुशी हुई कि हमारे मदरसे में हाफिज़ कुरान निकल रहे हैं और ये सिलसिला पहले से चलते आ रहा है। हमेशा हर साल 1 साल 2 साल में हाफिज़ कुरान निकलते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ था उस समय से कुछ टूट गया था। ये हाफिज़ कुरान का सिलसिला कुछ सिलसिले में छूट गया था, लेकिन अभी इंशाअल्लाह अच्छे हाफिज़ कुरान हुआ। इसमें हम लोग को, गाँव वालों को बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को खुशी लगा। और अभी जो हमारे एक मौलाना ने फरमा रहे थे कि हाफिज़ कुरान होना यहाँ का डिग्री, दीनी डिग्री या दुनियावी डिग्री दुनिया ही में रह जाएगा, लेकिन ये हाफिज़ कुरान हुआ है, इसको आखिरत में भी ये काम देगा, इसको जन्नत फिरदौस का ये जरिया बना, जखीरा बना, खानदान वाले को भी जन्नत ले जाने का ये कुरान में सुने हैं। हम लोग तो उलमाए दीन नहीं हैं, लेकिन सुनने में आए हैं कि ये 7 आदमी को जन्नत में ले जाएंगे हाफिज़ कुरान। ये सर्फ जो उनको मिला है, ये मुबारकबाद देने के लायक है। मोहम्मद वसीम अंसारी।